in this paragraph, the author is trying to say that, so while you are young, you have to know all these things. This is the age when you are already in a learning stage and you are growing up. You have to be shown all these things. क्योंकि आप अभी छोटे हो और ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है. एंड यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स. और आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज भी होना ज़रूरी है. You have to be exposed to all these things so that your mind begins to think. Otherwise, you will become like the rest of the world. And you have to, so that this is the main point of life where you should observe what is good and what is bad after learning these values, so that your mind is trained in a healthy way before it starts thinking in the way majority of people in this world think. ये सही टाइम है जब आपको सही और गलत का पता चले, क्या सही करना है, कैसे सही करना है चीज़ों को, गलत क्या चीज़ें होती, ये सब आपको पता चले. और जो सब जानने के बाद आपका दिमाग अच्छे से सोचना शुरू कर दे. और अगर आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए अच्छे से सोचेंगे तो आपके लिए आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा और आप ओल्ड जनरेशन के जैसे नहीं सोचोगे फिर. एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस. तो बिना प्यार के, बिना स्नेह के, बिना दान पुण्य के, बिना उदारता के ये लाइफ क्या बन जाएगी? टेरिबल बिजनेस. टेरिबल का मतलब होता है भयानक. So, if you don't have love, if you don't have affection for others, and if you don't do charity, neither you have generosity for others, your life is not successful. That is why one has to look into all these problems of violence. And due to this reason, everybody should know about violence. और इन सब चीज़ों के कारण हमें वायलेंस का मीनिंग समझना होगा. नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट, इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर. इफ़ यू आर ignorant towards violence, it means you have no intelligence and you don't belong to any culture. और अगर आप इसको नज़रअंदाज कर रहे हो, तो इससे नहीं समझ रहे हो, तो आप बिना बुद्धि और बिना संस्कृति की तरह ही हो. लाइफ इज़ समथिंग enormous, and merely to carve out a little hole for oneself and remain in that little hole fighting off everybody is not to live. It is up to you. From now on, you have to know about all these things. You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society. So what? Life is very long and it is not right to make a small hole in the corner of your life and living in it in you. Also, don't care about what happening around you. It's not the right way to live a life. It's up to you how you lead your life on the right path. ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसमें एक छोटा सा किनारा बनाकर आप रहने लग जाओ, आसपास की चीज़ों को आप ध्यान ही नहीं रखो, आपको ये करना बहुत गलत होता है और ये ज़िंदगी जीने का सही तरीका नहीं है. ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए. इट इज़ नॉट द राइट वे टू लिव योर लाइफ. इफ़ यू आर लिविंग लाइक दैट, इफ़ यू आर मेक अ स्मॉल होल इन द कॉर्नर ऑफ योर लाइफ एंड लिविंग इन इट्स, and this is not the right way. It is up to you how you lead your life on the right path. Be free, live happily, joyously, without any antagonism, without any hate. स्वतंत्र रहो, प्रसन्नतापूर्वक जियो, खुशी से बिना किसी नफ़रत के. Then life becomes something quite different. तब आपकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी? कुछ अलग ही तरह की होगी. Then life has a meaning, is full of joy and clarity. Then life has a meaning means तब लाइफ का एक अलग ही मतलब होगा, पूरी खुशी होगी उसके साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ हम अपनी लाइफ को जिएंगे. When you woke up this morning, did you look out of the window? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. अब आपसे राइटर एक क्वेश्चन पूछ रहा है
कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठे तब आपने विंडो से बाहर देखा एंड यू वुड हैव सीन दोज हिल्स, और आपने क्या वो हिल्स देखी, जो पहाड़ियाँ थी बाहर उनको देखा आपने. बिकम सैफरन एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई. जब आपने विंडो से बाहर देखा तब आपने क्या उन हिल्स को देखा, उन पहाड़ियों को देखा, वो पहाड़ियाँ जो सैफरन कलर थी. तो सैफरन का मीन्स होता है केसरिया कलर की होती, वो होती जा रही थी सैफरन कलर की. और जो सन है, जो वो प्यारे नीले आसमान से उदय हो रहा था, निकल रहा था. सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई. And as the birds began to sing in the early morning cuckoo cooed, there was a deep silence all around. And as the birds began, then जब birds ने गाना शुरू किया तब क्या हुआ, सवेरी वाली जो कोयल होती है कुकू, उसने क्या किया, उसने अपना गाना गाना शुरू किया. That was a deep silence all around. और आपने वहाँ देखा होगा जब कोयल आसमान के अंदर गा रही थी तो उसने कूकना शुरू करा था, तो क्या हुआ था, चारों तरफ एक गहरा साइलेंस हो गया था. देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट वन माइट जस्ट एज वेल बी डैड. तो इस महान सुंदरता को, मीन्स अ ग्रेट ब्यूटी मीन्स हियर व्हाट, ग्रेट ब्यूटी हियर मीन्स व्हाट, कि महान जो सुंदरता थी और जो लोनलीनेस है, मतलब उसका जो अकेलापन है, उसके अंदर जो भावना आई होगी, और कोई इन सब चीज़ों को जानने के लिए अवेयर नहीं हो तो वो एक डैड है. मतलब अगर हमारे अंदर एक महान सुंदरता की चीज़ जो कुकू बर्ड में देखी होगी, सन रोज़ होते हुए देखा होगा, जो सैफरन हिल्स को देखा होगा, तो ये सब चीज़ें अगर नहीं इंसान ने देखी तो वो इंसान एक कैसा है, जस्ट एज वेल बी डैड, एक मरे हुए इंसान के जैसे ही वो है. ओनली बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर. और इसके लिए बहुत कम ही लोग ही अवेयर होते हैं. यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड द हार्ट आर ओपन, व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन, व्हेन यू आर नॉट लॉन्गर वॉयलेंट. पर इन सब को बहुत कम लोग ही अब जान पाते हैं, बहुत कम लोग ही अवेयर हो पाते हैं. यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन. सो आप भी इन सब से अवेयर हो सकते हो अगर आपका माइंड और हार्ट जो है ओपन है, खुले हुए, और आप डरे हुए नहीं हैं. मीन्स आपका दैट योर हार्ट आर ओपन, योर माइंड इज़ ओपन व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए नहीं हैं, व्हेन यू आर नॉट लॉन्गर वॉयलेंट, और जब आप वॉयलेंट मतलब हिंसात्मक नहीं हैं. देन देयर इज़ अ जॉय, देयर इज़ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच very few people know, and it is a part of education to bring about the state in the human mind. तब वहाँ खुशी है. then there is a joy, there is extraordinary bliss of bliss का means extraordinary का मतलब असाधारण होता है, bliss का मतलब होता है आनंद. तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है आनंद, खुशी जो है, बहुत लोग कम ही लोग जानते हैं. और ये सब एजुकेशन का पार्ट है जो ह्यूमन माइंड में इस स्टेट में आता है.